Hello students, welcome to our YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, how are you all today? I hope you have done best in your unit test. Now, it's time to go further. This chapter is for your class test which you have to study. So, what is that chapter? The chapter is The Donkey. It is a beautiful poem which we have to learn, and on basis of this poem you will get a question in your class test. So first we will understand what this poem says, what is the meaning of this poem, and what is the moral value which we will learn from this poem. So let's go to the poem and see what it is saying. The Donkey. Yes student, the poem name is The Donkey, and the poet is anonymous, means we don't know the poet. There is no poet's name written in this poem, so we don't know who has written the poem, but it is all about a donkey, a small donkey who has just born, and he is of 1 day, that is his age is only 1 day. How the donkey looks, students? We all know that a donkey is our what? It is used for what? It is used for carrying loads. So here a new donkey, there is a donkey who is born and is 1 day, and what he is doing, what activities he is doing. Today we are going to learn that from this poem. So first, let's see. First I will read this stanza and then I will explain you the meaning of it. And with the sentence you can easily understand it because the poem is in a very simple and clear language. So let's see what it is. I saw a donkey 1 day old. So the age of the donkey is what? It's a 1 day old. His head was too big. Now whenever we see a small child, a 1 day child, so how does it looks? It's very small. At the head, see, from the body parts, overall body parts, the head is always bigger than all the other parts or the organs. So here also the donkey's head was too big for his neck to hold. Now why he is facing problem while holding his neck? Because he was too small and the skins, the bones are not so much developed to handle the neck, and that is why his head was too big for his neck to hold, and that is why he was unable to hold his neck. Understood, students? His legs were shaky and long and loose. Now the legs were very shaky. Why? Because the donkey is very small. So as we do the comparison, हम अगर compare करते हैं छोटे बच्चों से, so how it is? जैसे न्यू बॉर्न जल्दी से वो पैदा होते हैं तो वो खड़े नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि उनके स्किन्स, उनके बोन्स बहुत ही स्मॉल रहते हैं ना, और बहुत ही वीक रहते हैं. धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है देन वो सारे बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं. वैसे ही यहाँ पे डोंकी के जो हेड है वो बहुत ही बिग है, और उसका जो वर्टिबल कॉलम है या जो स्पाइन है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो अभी कोई भी मूवमेंट जो है वो अपने हेड का मूवमेंट कर सके या हेड का जो वज़न है वो संभाल सके. एंड सिमिलरली लेग्स तो बहुत ही लंबे थे, बट वो कैसे थे? लूज थे और शेकी थे. दे रॉकेटेड एंड स्टैगर्ड एंड weren't much use. Now rocketed means what? Rocketed means moved suddenly, and staggered means unsteadily. अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनके जो पैर हैं, डोंकी के पैर हैं, वो ऐसे बस हिल रहे थे, मूव कर रहे थे और स्टेबल नहीं थे, एक जगह पर नहीं खड़े रह पाते थे, बिकॉज वो बहुत ही लूज थे. एंड weren't much use means, और इस वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे उस लेग्स पे, बिकॉज वो अभी बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है, बिकॉज द डोंकी इज़ ऑफ ओनली 1 day old. He tried to gambol and frisk a bit. Now he tried to gambol. Gambol means move. वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो मूव करे, वो रन करे, वो प्ले करे.
बट वो नहीं कर पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू डू एंड बट ही वॉजंट क्वाइट श्योर ऑफ द ट्रिक ऑफ इट, लेकिन वो क्वाइट भी श्योर भी नहीं था कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, कैसे कर पाऊंगा या नहीं, बट वो बहुत ही कोशिश कर रहा था अपने पैर्स को, लेग्स को मूव करने के लिए, रन करने के लिए. His queer little coat was soft and grey. Now here queer little coat means what? The skin. अब स्किन के ऊपर जो फर थे वो कैसे थे? बहुत ही सॉफ्ट थे एंड ऑफ ग्रे कलर एंड कर्ल एट द नेक इन अ लवली वे. और वो कर्ल थे जो नेक के पास थे वो बहुत ही कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे. So what the poet wants to say? His peculiar little coat was very soft and grey and curled एट हीज नेक. गर्दन के पास वो जो सब ऐसे घुंघराले टाइप जो थे वो बहुत ही प्रिटी वे लग रहा था, मतलब लवली वे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे. हिज फेस वॉज विस्टफुल एंड लेफ्ट नो डाउट दैट ही फेल्ट लाइफ नीडेड समथिंग अबाउट. सो ही ब्लंडर्ड राउंड इन वेंचरसम क्वेस्ट एंड देन ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड टू रेस्ट. सो वॉट द पोएट थॉट, उसने क्या सोचा कि ये लाइफ जो है वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और मैं इतने जल्दी अभी नहीं कुछ कर सकता हूँ, तो थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ, फिर जैसे थोड़ा और बड़ा होऊंगा तो मैं फिर से वो कोशिश करूँगा. फिर जैसे ही बड़े होने के बाद व्हाट ही थॉट कि जैसे बड़े होऊंगा तो मैं जो एडवेंचर्स है, जो यहाँ वहाँ घूमना है, वो सब मैं कर पाऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे अभी थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है. नाउ दिस इज़ द नेचर्स थिंग स्टूडेंट्स, कि हम जब पैदा होते हैं, हम न्यूबॉर्न रहते हैं, हम सारी चीज़ें उसी समय नहीं कर सकते हैं. एवरीथिंग इन आवर लाइफ हैज़ अ टाइम, ठीक है, और हर चीज़ करने का एक सही टाइम होता है. अभी अगर वो डोंकी प्लान करे कि नहीं अभी मुझे दौड़ना है, मुझे चलना है, इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम? नो. वाई? बिकॉज उसके बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. वो कब स्ट्रॉन्ग होंगे? एट अ सर्टेन एज. सो हर चीज़ करने का एक सही एज होता है. हम हर एज में हर चीज़ नहीं कर सकते हैं. और सेकेंड थिंग ये कि हम हर चीज़ करने से पहले अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, वो हमें हर चीज़ सिखाते हैं, राइट. सो इसी तरीके से लाइफ भी होती है कि हम अगर सोचें कि बस आज ही सब कुछ कर ले तो ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू ट्राई ऑल आवर बेस्ट एवरी डे एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली द चेंजेस कम इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड, इन आवर एक्टिविटी. Okay students, he looked so little and weak and slim. I prayed the world might be good to him. So अब यहाँ पे क्या है, पोएट को बहुत ही टेंशन हो रही है कि इतना छोटा सा, इतना सा स्लिम है, दुबला सा है, बहुत ही वीक है. मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि लोग इसके साथ अच्छे रहें. Now here what the poet wants to say, generally what is the use of the donkey? डोंकी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं डोंकी के साथ? हम उसे बहुत सारा वज़न दे देते हैं कि तुम इसे उठाओ, ठीक है. इररिस्पेक्टिवली थिंकिंग दैट अ डोंकी इज़ ऑल्सो अ एनिमल एंड ही ऑल्सो नीड्स अ रेस्ट, ही इज़ ऑल्सो हैव सम कैपेसिटी, बट रादर देन वी थिंक वी डू व्हाट वी डू, वी डजेंट फील पिटी ऑन इट. एंड हम क्या करते हैं, अपना सारा जो वज़न का भार है वो उस पर दे देते हैं, लोड उठाने के लिए दे देते हैं, ठीक है. ये ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो एक एनिमल है, वो थक जाएगा या उसे बहुत परेशानी होगी, या फिर एवरी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल नीड्स काइंड एंड अफेक्शन फ्रॉम एवरीवन, राइट. हर किसी को थोड़ा सा अफेक्शन और काइंड लव की ज़रूरत होती है, लेकिन हम ये क्या करते हैं, हम अपनी इंसानियत भूल जाते हैं. हम उसके साथ एकदम जानवर, हालांकि वो एनिमल है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं कि हम हमारी जो वैल्यूज़ है उसे ख़त्म कर देते हैं. एंड दैट इज़ वाई पोएट को बहुत ही टेंशन है कि अभी तो इतना छोटा सा क्यूट लग रहा है, बिकॉज ही इज़ वेरी स्मॉल, ही इज़ नॉट ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क फॉर अस. इसीलिए हम इसको पीटी बोल रहे हैं, मतलब मासूम बोल रहे हैं. जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा हम क्या करेंगे, इसे बहुत सारा काम दे देंगे. एंड दैट इज़ वाई पोएट इज़ प्रेइंग टू गॉड दैट जो ये दुनिया है वो उस जानवर के लिए, उस ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी रहे, और इतना सारा वर्कलोड जो है मतलब उसके यू कैन से उसके भार से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसे काम ना दे, ताकि वो मतलब जो जानवर है वो मजबूर हो जाए.
And in this way we have learned this poem, and what we have understood, that we should be kind to animal also. They also have life, they also have a feelings. So हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है. Okay, and this is the only motive of this poet to make us aware about the value of human being as well as the value of animals in our life. So do study this poem, and the questions on the classes will be asked on the basis of this poem only. So do read the story twicely and thrisely so that you can get the concept very clearly, and do watch this video every time so that you can you would understand the concept, and you will understand the meaning, the values of which is gained from this poem. Have a nice day, students. Bye bye.